guys, welcome and welcome back to my channel. I really hope you all are doing amazingly good and staying at home because it's too cold outside. Lucknow is completely freezing right now. So yeah, before starting today's video, I'm just going to give you all an introduction of myself because then only you all will be able to understand what all I'm talking about in the whole video. And otherwise you'll be like, क्या बात कर रही है ये कौन है ये So hi, my name is Mansi. I make videos on fashion and lifestyle, and I do have a brand and boutique. My brand is available on Flipkart and Amazon, and I do have a physical boutique store which is located in Alambagh, Lucknow, where we provide customization as per the client's requirement. So yeah, before starting this video, I gave my introduction. Now I want to request you all कि please like and subscribe to my channel if you like the content because that is very necessary. At the end of the video I always forget to say this. So अगर आपको ये content अच्छा लगेगा, अगर आपको ये channel के videos अच्छे लगते हैं, then do not forget और please हमें subscribe करें. Thank you so much if you're doing that. So yeah, as you all have read from the title of this video that I am going to share few of the things that I have learned during the past 1.5 years. My business is 1.5 years old, and उस जर्नी में, उस प्रोसेस में what all I have learned that I'm going to share. Not everything, I have targeted 3 of the most important thing. और अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगेगा, आपको ये हेल्पफुल लगेगा, देन प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट में या कैसे भी. सो लाइक आई वुड नॉट से कि मुझे बहुत कुछ पता है और समथिंग कि मैंने सब सीख लिया है. इट्स नेवर गोइंग टू बी लाइक दैट. बट आई रियली पीपल हैव रीच्ड आउट टू मी टू आस्क कि आपने कैसे स्टार्ट किया एंड व्हाट आर द थिंग्स जो कि आपको लाइक आपको लगता है ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, लाइक थिंग्स लाइक दैट. So people ask me, and I really think this is the most stupid act if you are doing it with anyone. This is my personal thinking. I'm not forcing it on anyone, but why I'm saying this? Because everyone has their own journey. So it's not important कि what all the hurdles and problems that I have faces in my journey वो सेम चीज़ आपको भी फेस करनी पड़ेगी. It might be a bigger one, it might be a smaller one. So it is always going to be a different thing for each for each individuals. So first things first, ये चीज़. So yeah, अगर कोई आपको ये कहता है कि आप किसी भी XYZ पर्सन से कंसल्ट करें, आप डेफिनेटली कंसल्ट करें, बट एट द एंड आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि वो उसकी जर्नी है. मे बी वैसा कुछ आपकी जर्नी में हो ही ना, और द प्रोसेस गोइंग टू बी रियली डिफरेंट फॉर यू. सो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहें. पूछें सबसे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी करना है आप उसको एक प्रोसेस में लाएं, उसको स्टार्ट करें, एंड जो चीज़ें उसके बाद होनी होंगी वो होंगी ऑटोमेटिकली. सो या द फर्स्ट थिंग, जैसा मैंने इस वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है कि I am sharing few of the things I wish I knew earlier, and yeah, the first thing that I'm going to share is you should not be very friendly with your customer. I know काफ़ी weird लग रहा होगा आपको सुनने में, but trust me guys, I have literally been facing a lot of problems, and now I have changed a lot of things in my personality. When I'm talking to a customer, it has given me a lot of confidence to say, to communicate what are the requirements you have, and these are the charges we charge for the same. So when you are too friendly with your customers, see there are always two types of customer, और आपके 90% customers अच्छे होते हैं. I'm not saying that 10% is bad. There's always a experience, बट जो मे बी वो 10% है वो आपके उस चीज़ को एक गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे. इफ़ यू आर टू फ्रेंडली दे विल बी लाइक कि आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सिक्वेंसेज कि इफ़ यू आर टू फ्रेंडली दे विल बी लाइक कि हाँ वील डू द पेमेंट लेटर ऑन, वील ट्राई, वी थिंक एंड देन वील डू, यू डोंट ट्रस्ट मी क्या, वी आर लाइक अ फ्रेंड. सो ऑलवेज सेट अ बाउंड्रीज एंड यू शुड नॉट लेट एनी वन एंटर. लाइक अगर कोई बाउंड्री है, यू शुड नॉट लेट एनी क्लाइंट एंटर लाइक अबव दैट. सो हमेशा ये चीज़ को आप ध्यान में रखो, बिकॉज आई यूज टू बी अ पर्सन हु
Like I used to give my 200% if I like the client, if I know that it's like they want something really like fancy or something like that. I used to involve a lot, but later on I realized ki nahi, this is not good, because when, and it bothers the work as well. When you are too friendly, the client expects a lot from you. There is nothing wrong when they are expecting, but there are always the charges, the service charge, the kind of services you are providing. But when you are friendly and you are friendly with everyone, then it will affect you and your mental health a lot. So be friendly. Like when you say na ki being like that person is way too rude with me, or that friend is not friendly at all, जितना रूड होना और अनफ्रेंडली होना आपके बिजनेस को बॉदर करता है, उतना ही बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एंड बहुत ज़्यादा लाइक वे लाइक अ फ्रेंड काइंड ऑफ अ थिंग सिचुएशन अगर आप क्रिएट कर रहे हो ना अपने क्लाइंट्स के संग, वो भी उतना ही लाइक एक जो आपको बिजनेस को इम्पैक्ट उतना ही बुरा करता है. तो देर इज़ अ सेट ऑफ बाउंड्रीज. यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ प्रोफेशनलिज्म इन योर बिजनेस, एंड उसी तरीके से आप अपने क्लाइंट को डील करो. अदरवाइज दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस, the overall satisfaction, your mental health, everything. And the kind of charges you are charging, you will never be able to communicate it clearly ki these are the charges you are charging, and there is no point of providing the services when you are not able to say what you want. And I'm not saying ki maybe if you are a very big dealer, maybe you are a big businessman, but what I have felt, and few of my friends are also facing the same issues, so I don't think it's a subjective thing. मतलब we there are so many people facing the same issues, so please do not be very friendly. The second thing I am going to share is I know my points are really weird, but these are the true points. मतलब I have felt it. I have, sorry, the phone is showing low battery. Wait. Okay, so the second thing that I'm going to share is you should always make a certain benchmark of the rates in your mind, एंड नेगोशिएशन को कभी भी उससे बिलो दिमाग नहीं जाना चाहिए आपका नेगोशिएशन. सो द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो रेट्स लगते हैं, हम एक सर्टेन रेट बना लें और उसके आगे हम थोड़ा सा प्राइस रखें. उससे ये होता है जब भी कोई कस्टमर हमसे नेगोशिएशन एक्सपेक्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुडेंट बी लाइक दैट, बिकॉज आप एक मार्केट में अगर बैठे हो, अपने मार्केट के चार्जेस के अकॉर्डिंग उन रेट्स को रखो. बट स्टिल अगर कोई कस्टमर आपसे नेगोशिएशन एक्सपेक्ट कर रहा है, जस्ट मेक अ बेंचमार्क कि उससे बिलो आपको नहीं जाना. और ये आप कहीं लिखोगे नहीं, इट शुड बी इन योर हेड कि हाँ इतना बेंचमार्क है, इतना बिलो हम जा सकते हैं, उसके बाद हमें नहीं जाना है. इफ़ द क्लाइंट इज गोइंग फ्रॉम योर हैंड, बिफोर द टाइम आई यूज टू बी अ पर्सन वेयर मैं बहुत नेगोशिएट कर देती थी. लाइक अगर कस्टमर, बस ये होता था कि कस्टमर ना जाए मेरे गेट से, और चलो कम करना है ना, और कम कर लो, और कम कर लो, और कम कर लो. बट नाउ आई हैव रियलाइज आई शुडंट हैव डन दैट. और अगर चलो किया भी है, बट आई विल नॉट डू दैट अगेन एवर इन माई लाइफ. इफ़ द कस्टमर इज़ गोइंग, दैट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि अगर उसको कोई चीज़ बनवानी है, आप नहीं बनवाओगे, कहीं और जाएगा वो. बट इट शुडेंट बी लाइक कि हाँ हम किसी भी रेट पे कुछ भी अग्री कर जाएं. देयर शुड ऑलवेज बी अ सर्टेन चार्जेस जो आप सबसे चार्ज करो. देयर शुडेंट बी अ केस वेयर आप इनसे अलग चार्ज कर रहे हो, आप उनसे अलग अलग चार्ज कर रहे हो. कभी कभी ऐसा होता भी है, हम कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अपने रेट्स रखते हैं थोड़ा सा, बट दैट्स अ कम्प्लीट डिफरेंट थिंग. वो इस चीज़ में नहीं आता है. बट आप एक बेंचमार्क सेट कर लो. कोई भी क्लाइंट अगर आपसे नेगोशिएशन करवा रहा है, आप उसके बिलो मत जाइए. तो दिस इज़ अ थिंग दैट आई बिलीव, क्योंकि इससे ना आपका लॉस नहीं होता. इफ़ यू आर नॉट मेकिंग फॉर फ्यू थिंग्स, इफ़ यू आर फॉर फ्यू ऑफ द कस्टमर्स, इफ़ यू आर डूइंग दैट, कभी कभी वो वर्क भी करता है. बट अगर वो आपके एक प्रोसेस में आ गया ना, तो यू विल बी कम्प्लीटली डूइंग दैट ऑल द टाइम, एंड आप उस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करोगे. और उससे ना क्लैरिटी आपको भी नहीं होगी, आपके स्टाफ को भी नहीं होगी, और आपको किस तरीके से काम करवाना है उसमें भी नहीं हो पाएगी. सो ऑलवेज मेक अ नोट इन योर हेड कि हाँ दीज आर द चार्जेस इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, और हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है. सो या दिस इज द सेकेंड थिंग. द थर्ड थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज always take an advance amount
I know this is the toughest this is the toughest part for the business owner like us, because I have seen a lot of customers who never will to give advance amount, and that is okay अगर हम खुद को भी customers के point of view से समझें तो उनका भी point of view सही है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट आपके पास में है और हम कहाँ ही भाग जाएंगे, ऐसी चीज़ें आपको सुनने में आएंगी. बट ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव लिटरली फेस्ड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जहाँ पे पीपल आर लाइक कि आप ये बना दो, लाइक आप अपने से, लाइक मैंने बोला ना, जब आप बहुत फ्रेंडली हो जाते हो तो यू फेस अ लॉट ऑफ इशूज़. तो देयर वॉज अ कस्टमर was like कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप ले आओ. सो वी बॉट द फैब्रिक, वी डाइड द फैब्रिक, वी स्टिच द फैब्रिक, and we bought the lace as well because the customer wanted it. So we bought everything, we got approved, like each and every step हमने उनसे approve करवाया, and the customer was like I don't want it now because ये वैसा नहीं निकल कर आया जैसा मुझे चाहिए था. So you faced a lot of problem because the fabric was mine, we paid the dyed charges, we paid for the laces, we paid for the stitching, एंड देन कस्टमर ने वो चीज़ नहीं ली. सो आई नो हर कस्टमर ऐसा नहीं होता है, बट फॉर दैट 1% ऑफ द कस्टमर हमें सभी चीज़ों में वो चीज़ हमें लगने लगती है कि हाँ हम किसी कस्टमर के लिए इस तरह से नहीं प्रोवाइड करेंगे. बिकॉज जब एक होता है ना, जब आपको एक धोखा मिल गया तो यू टेन टू फील कि नहीं हम किसी कस्टमर को नहीं प्रोवाइड करेंगे फिर ऐसे सर्विसेज. तो या आई हैव फेस्ड, देयर वॉज अ कस्टमर who gave me like 7 to 8 सूट सेट्स एंड शी नेवर केम बैक टू मी एंड शी वॉज लाइक कि मुझे ये सारे गिफ्ट्स मिले हैं, सो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे सिलवाऊँ, एंड आई पेड ऑल द चार्जेस टू गेट देम स्टिच एंड शी नेवर केम अप टू मी. लाइक चार्जेस इन द मीन्स इफ आई एम पेइंग द सैलरी, सो एक तरीके से वो चार्जेस का ही फॉर्म है, एंड शी नेवर केम बैक फॉर द सूट सेट्स. तो वॉट, लाइक क्या करूँगी मैं उन सूट सेट्स का, it's not going to be for my use. So you should always charge 50% of the amount. सपोज किसी का भी जो भी अमाउंट हो रहा है आप उसका एक 50% अमाउंट चार्ज करें कस्टमर से, एंड ट्रस्ट मी गाइज दिस इज गोइंग टू रिड्यूस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम यू एज वेल. आई नो द कस्टमर इज काइंड ऑफ गोइंग टू like little finicky about the fact कि why are you charging, but trust me when you say this bluntly the customer will give you. इन जब से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की ना चार्ज करना, अराउंड 1 or 2 कस्टमर हैज़ क्रॉस क्वेश्चन मी और डिड नॉट पेड. एंड अगेन जिस कस्टमर ने मुझे नहीं पे किया है उन लोगों का बहुत टाइम तक रखा रह जाता है, दे डू नॉट कम, दे डू नॉट बॉदर. बट अगेन हम उस चीज़ को बैठ के थिंक नहीं कर सकते ना कि वो कस्टमर नहीं आया, ऐसा तो होता रहता है. बट अगेन अगर आप उसको, बट दिस इज़ फॉर द कस्टमर्स एज वेल कि अंडरस्टैंड वाई वी आर चार्जिंग. इट्स नेवर ऑलवेज लाइक कि हमें पहले से अमाउंट ले लेना है. सम टाइम वो चीज़ इसलिए भी होती है कि अगर हम आपका कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं तो हमें जो अमाउंट से आपका लाइक लाइनिंग मंगवाना है या कुछ पैड्स मंगवाने हैं या कोई भी मिसलिनियस अमाउंट मंगवाना है, ऐसा नहीं है अगर आप एडवांस नहीं पे करोगे तो हम वो चीज़ मंगवा नहीं पाएंगे, हमारे पास वो मिसलेनियस थिंग्स अवेलेबल नहीं होगी. But it is always a supportive thing because we do not have to work for one customer, we have to work for so many other customers as well. So it is always going to be helpful for you and for us to understand, and हमें भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है to buy so many other fabrics like for you only. अगर हमें लाइनिंग खरीदनी है for the fabrics, for other miscellaneous amounts, for other miscellaneous things जो भी हमारी फिनिशिंग में यूज़ होती हैं, जो स्टिचिंग में यूज़ होती हैं, जो स्टिचिंग चार्जेस हम अपने टेलर्स को देते हैं, मास्टर्स को देते हैं. सो इन चीज़ों में जो चीज़ यूज़ होती हैं तो हमें वो सारी चीज़ें बैलेंस करनी होती हैं. सो फॉर दैट ऑल्सो वी चार्ज, एंड उससे एक सिक्योरिटी बनी होती है कि हाँ कस्टमर भी इन चीज़ों को लेके विलिंगनेस दिखाएगा, और हमारे अंदर तो है ही विलिंगनेस, हम आपको नहीं चाहते कस्टमर हमारे हाथ से जाए, और एक अच्छा कस्टमर तो बिल्कुल भी ना जाए. सो या अच्छा कस्टमर से मेरा मतलब ये नहीं है कि लाइक कोई अच्छा कस्टमर है कोई बुरा कस्टमर है, नो इट्स नॉट लाइक दैट. हर किसी का अपना माइंडसेट होता है. बट आई ऑल्सो शेयर वन इंसिडेंट विद यू ऑल्सो. देयर वाज अ कस्टमर हु लाइक उन्होंने मुझे पीसेस दिए थे, लाइक शी गेव मी अ लॉट ऑफ पीसेस टू स्टिच, एंड वी वर लाइक कि अगर आप इतने सारे दे रहे हो तो यू शुड गिव मी एटलीस्ट 1 or 2 pieces first and come for the trial, and after that we'll proceed with the other pieces as well. So she was like okay, so we gave the trial, और उन्होंने वो ट्रायल किया, एंड देन शी वॉज ओके. शी वॉज लाइक
चलो ठीक है, ओके, विल गिव ऑल द अदर पीसेस. And she gave me around 12-13 pieces to stitch and everything was perfect. We stitch all of them and then we were expecting कि they'll come and जो उसमें से उनको सही लगेगा वो लेके जाएंगे. कुछ भी हल्का सा ऑल्ट्रेशन हुआ तो we like हम वो ऑल्ट्रेशन कर देंगे एंड देन वो भी लेके जाएंगे वो. बट टू बी वेरी फ्रैंक, उनको वो कपड़े लेके नहीं जाने थे. एंड वो ऐसा होता है ना कि शादियाँ सपोज 5-6 मंथ्स के बाद में हैं. सो वो लोग 5-6 मंथ्स पहले वो पीसेस दे देते हैं बनने के लिए. सो उससे क्या होता है, अगर आप एडवांस चार्ज नहीं कर रहे हो तो आपने जितने भी उन्होंने पीसेस दिए हैं उसका आपने चार्ज अपने टेलर्स को, अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको दे दिया. आपने उसमें जो भी अमाउंट लगाना है उसको मैन्युफैक्चर करने में वो सब कुछ कर दिया. एंड देन द कस्टमर इज़ नॉट विलिंग टू टेक दैट पीस टू देयर होम बिकॉज उनको तो अभी पहनना ही नहीं है, उनको वो चीज़ पहननी है आफ्टर 4-5 मंथ्स. सो इट हैपेंस विद यू. तो अगर आप 50% अमाउंट चार्ज कर लोगे तो एटलीस्ट यू हैव पेड ऑल द वर्कर्स, यू हैव परचेज ऑल द अदर थिंग्स जो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको चाहिए. और फिर उसके बाद जो आपका अमाउंट होगा आप उसमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस फिर भी कर लोगे. चलो ठीक है, जब कस्टमर लेके जाएगा वो 50% पे कर देगा और ठीक है वो चीज़. बट ऐसे आप अपने लिए ही बर्डन क्रिएट करते हो अगर आप 50% नहीं ले रहे हो. एंड दैट कस्टमर, उन्होंने वो कपड़े आई थिंक 3-4 मंथ्स तक लिए ही नहीं, जब तक उनके घर में का फंक्शन बिल्कुल आ नहीं गया कि अब चलो अब पहनना है हमें. एंड कंटिन्यूसली शी गेव मी फॉर ऑल्ट्रेशंस कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है. कम आई अंडरस्टैंड, दैट्स नॉट एन इशू. अगर उनको कोई चीज़ परफेक्ट नहीं लग रही है तो वो दैट इज़ आवर जॉब टू फिक्स इट. बट आई अगेन थिंक कि दैट्स अ वेरी, बिकॉज जो उसमें से सही उनको लग रहे थे दे वर नॉट विलिंग टू टेक दैट ऑल्सो. सो इट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर अस टू अंडरस्टैंड. एंड वो अपने आप को तो आई डोंट नो व्हाट दे वांट, सो व्हाट दे वांट. सो या इट वर्क्स, इट डज वर्क. और अगर देखो आप बहुत पहले से इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, आपने सब फेस किया होगा, आपको सब पता होगा. बट फॉर द बिगनर्स it is very difficult. Also, one thing that I would like to share is always make the bill. I know I won't say that I am lazy or something like that, but I am not very formal with a lot of things. And if I am very friendly with the customer, I'm not saying that being friendly with your customers is wrong. Literally, trust me, if you'll ask so many of my customers, I am way too friendly. But now I have realized we should be friendly, but we should also maintain our professionalism. So this is what I am meant when I'm saying this. So yeah, one thing that I would like to share again is you should always make the bill. No matter what, always make the bill. And sometime I am I am literally out of the bills and मेरे bills ख़त्म हो जाते हैं और मैंने उनको बिल बुक छपने अपने को दी होती है प्रिंट होने के लिए. सो बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग, सो समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू कीप अ ट्रैक ऑन एवरीथिंग कि what are the things available, what I should also make the things available at time or something like that. So कभी कभी ऐसा होता है कि आई एम नॉट ऑन ट्रैक विद एवरीथिंग. सो मैंने कोई चीज़ प्रिंटिंग एंड ऑल कर दी होती है, सो आई डू नॉट हैव द बिल. तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं जहाँ उनका पूरा डिस्क्रिप्शन नोट करती हूँ वहाँ पे उनका प्राइस लिख देती हूँ, उनको पिक्चर व्हाट्सएप कर देती हूँ सो दैट कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो. एंड ऑलवेज 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 मेक द बिल, बिकॉज मैंने ये गलती बहुत बार की है. आई वॉज नॉट मेकिंग द बिल फॉर फ्यू ऑफ द कस्टमर्स बिकॉज वी आर सो फ्रेंडली. तो आई एम लाइक कि ठीक है आई मेक द बिल, और समटाइम्स दे आर लाइक आई डोंट मेक द बिल, आई पे व्हेन आई विल कम or something like that. And then it creates a lot of confusions for you and for your staff as well, because अगर आप कभी भी available नहीं हो at the store तो it creates a lot of confusion कि क्या actual amount है जो आपके staff को client से लेना है. Because sometimes client also negotiate with them एंड उनको प्राइस का पता नहीं होता. समटाइम्स दे डू नॉट विलिंग टू पे एट द टाइम दे टेक द प्रोडक्ट. दे बी कि चलो मैं पे कर दूंगी बाद में या मैं उनको पे कर दूंगी. सो अगर आप बिल का अमाउंट बिल्कुल क्लियर रखोगे तो उससे
बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड आई नो बहुत लोग ऐसी मिस्टेक नहीं करते होंगे, और मैंने भी ऐसा कुछ ही टाइम किया हुआ है, लाइक विद वेरी फ्यू ऑफ द कस्टमर, बट अगेन आई से इफ एवर यू आर डूइंग इट, डोंट डू दिस। सो दिस इज़ अ मेजर मिस्टेक जो कि कभी भी कोई ओनर ऐसा कर सकता है। सो या you should also eliminate this thing completely. So yeah, with this I would like to end this video here only, and I really hope you found this video helpful. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, then please do not forget to like, share, subscribe to my channel. I know it's not only the three things, there are a lot of things, there are a bunch of things जो मैं आपके संग शेयर कर सकती हूँ, एंड बट ये वीडियो जो है ना वो घंटे 2 घंटे का हो जाएगा, बट अगेन आई से इट्स ऑलवेज अ एक्सपीरियंस, आई कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद यू ऑल। आपको जो भी पता चलेगा आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता चलेगा। सो या यही पे मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ, एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई हैव सेड दिस so many times today. So yeah, thank you so much for watching. Bye, take care of yourselves, good night, have a good sleep.